God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. How many of you in this room have never fasted even once? I'm talking about spiritual fasting. I'm not talking about dieting. I'm talking about fasting spiritually. How many of you never did it even once? आप में से कितने सारे लोग अभी तक आत्मिक के लिए फास्टिंग अभी तक नहीं की अपने जीवन में? Okay, good. So many sincere people. Thank you. How many of you have always feasted? All right, this morning let's talk about fasting. आज हम उपवास के ऊपर हम देखेंगे. What is fasting means? उपवास का मतलब क्या है? Is this really needed for Christians today? क्या ये आज के समय में हम मसीहों के लिए ज़रूरत है? What are the benefits of fasting? इसके फायदे क्या है? What involves during fasting? और उपवास के दौरान क्या जुड़ा हुआ है हमारे ज़िंदगी में, उसको हम देखेंगे. Turn your Bible to the book of Daniel chapter 6. इस समय आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं दानियल पुस्तक में अध्याय 6. In Daniel chapter 6 we read about a king called Darius. और हम यहाँ पर एक राजा दरायस के ऊपर हम पढ़ते हैं बाइबल में. And there were a group of people who were envious and jealous about Daniel. और ऐसे कुछ लोग थे जो दानियल के खिलाफ ईर्ष्या को रखते थे. And they wanted to somehow put Daniel into trouble. और ये जो कुछ लोग थे दानियल को जो है उन लोग प्रॉब्लम्स में डालना चाहते थे. So they said, we need to make a law where that nobody should worship any other god. और उन लोगों ने कहा है राजा हम जो एक ऐसा कानून बनाएंगे कि हमें कोई और दूसरा भगवान की आराधना नहीं करेंगे. But they should just come to you. लेकिन उन लोग को जो है आपके पास आने चाहिए. Because Daniel was he was loved by the king, he was preferred by the king, he was above everybody else, and the king saw that he was having an excellent spirit. और दानियल को जो है लोग देखा कि राजा ने जो है बहुत प्यार करते थे, उसको बहुत ही बढ़ावा देते थे और वो उत्तम आत्मा वाले व्यक्ति थे. So these governors and all those people got together and told the king, let's make a decree that anybody who prays should only pray to you and to nobody else. और ऐसे सरकार और बहुत से लोगों ने ऐसा कानून को बनाया कि हम जो है कुछ दूसरे भगवान की पूजा नहीं करेंगे लेकिन केवल राजा की हम करेंगे. And anybody else who prays to any other god would be punished. अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ और दूसरा भगवान के पास पूजा करने के लिए जाएंगे उसको सजा मिल सकता है. And so the king liked that idea. और उस राजा को जो आइडिया है वो पसंद आया. And he signed the law. और उसने कानून में जो है उसने साइन कर दिया. So there is a man called Daniel in this chapter. और इस अध्याय में एक व्यक्ति जिनका नाम जो दानियल है. We know about Daniel very much. और हम दानियल के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं. Now when we talk about Daniel, what comes to your mind? जब हम दानियल के बारे में हम जब सुनते हैं हमारे मन में तुरंत क्या आता है? The lion's den. और लायन का जो गुफा है उसके ऊपर हम समझते हैं. And we read that in this chapter. और इस अध्याय में हमें ये जरूरत है. And so when this law was passed, what Daniel did? जब इस कानून को बिठाया गया तो दानियल ने क्या किया? Verse number 10. वचन नंबर 10 में देखेंगे. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house and his windows being open in his chamber toward Jerusalem. He knelt down his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र में से हस्ताक्षर किया गया है तब वो उस घर में गया जिसकी ऊपर रोटी कटोरी और खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा. The law passed by the authorities against God, the God of the Bible and the people of God did not affect Daniel. और बाइबल के परमेश्वर के खिलाफ और लोगों के खिलाफ जो है ये जो कानून को बिठाया गया लेकिन दानियल को कोई फर्क नहीं पड़ा.
Daniel said, "You can pass as many laws as possible against my faith, दानियल ने कहा तुम मेरे विश्वास के खिलाफ चाहे जितना भी तुम कानून को बनाओ, but I am going to continue praying and worshiping the God of the Bible." लेकिन बाइबल का परमेश्वर की आराधना करना मैं लगातार करते रहूंगा। And so Daniel goes into his room, और दानियल अपने कमरे में जाता है closes the door, और दरवाजा बंद करता है opens the windows towards Jerusalem, और यरूशलेम की और खिड़की को खोलता है and for 3 times a day और दिन में 3 बार he knelt down, और घुटने टिकाकर looking toward Jerusalem, यरूशलेम की ओर देखकर and he prayed. और वो प्रार्थना करने लगा। And what did he do? और उन्होंने क्या किया? He defied the law of the land. और उस जगह के जो कानून है उसके खिलाफ गए, He defied it. उसका पालन नहीं किया। The government told you should not go to church during Corona. सरकार ने कहा कि कोरोना के समय तुम्हें चर्च नहीं जाना चाहिए। 95% of Christianity all over the world obeyed what the government said. पूरे संसार में 95% लोग जो है सरकार ने जो कहा है वो लोगों ने पालन किया। There were few preachers who had some backbones who stood up and he continued the church services. लेकिन कुछ ऐसे प्रचारक थे जिन्होंने कभी चर्च सेवा को बंद नहीं किए, लेकिन उन्होंने लगातार आराधना को रखे। And we thank God our church was one among them. और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उनमें से हमारा एक कलीसिया। During the lockdown, we didn't lock down our church. लॉकडाउन के दौरान हमने हमारे कलीसिया को हमने बंद नहीं रखा, We continued worshiping God. हम लगातार प्रभु की आराधना किए। Maybe now 9 o'clock may seems late, शायद 9 बजे अभी जो है हमारे लिए लेट लग सकता है, but during lockdown people were coming to church at 6 a.m. in the morning. लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोग 6 बजे को सुबह को आ रहे थे And people came from all 4 parts of Goa और- and coming for church service 6 a.m. in the morning. गोवा के चारों कोने से लोग जो है सुबह 6 बजे को कलीसिया को आ रहे थे। The law of the land, when it is passed against the faith of God, should not make you to obey that law, जब- but God. जब कोई कानून हमारे विश्वास के खिलाफ बिठाया जाए तो वो आपको नीचे नहीं लेकिन आपको विश्वास में और भी आगे बढ़ना है। David prayed. दाऊद ने प्रार्थना किया। Now they caught him अभी उन्होंने उसको पकड़ लिए, and they put him in the lion's den. अभी उन्होंने सिंह के मान में उन लोगों को उन्हें फेंक दिया। Verse number 16. वचन 16 में Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the lion's den. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. तब राजा ने आज्ञा दी, हे दानियल लाकर सिंहों के मान में डाल दिया गया। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। Now Darius knew the God of the Bible was true God. जो राजा दरायस है वो जानता था कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। Darius believed in the God of the Bible. दरायस जो है बाइबल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे। He knew the God of Daniel is the true living God. वो जानता था कि दानियल का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। Darius was broken and saddened that Daniel was put in the lion's den. और राजा अंदर अंदर टूटा हुआ था, दुखी था कि दानियल को जो है सिंह के मान में डाला गया But है। because he was a king, क्योंकि वो राजा था, and because he signed the law, क्योंकि उन्होंने कानून को बिठा दिया and he couldn't break the law that he made, और जो कानून को उन्होंने बनाया उसको नहीं तोड़ सका। he commanded Daniel to be brought, और दानियल को उन्होंने आज्ञा देता कि उन्हें ले आए and they threw Daniel into the lion's den. और सिंह के मान में उन्हें डाल दिया। And he told Daniel, और दानियल से राजा ने कहा, Daniel, the God that you worship will deliver you. जो परमेश्वर की तुम आराधना करते हो वही परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। And that night, Darius couldn't sleep. और उस रात को दरायस जो राजा है वो सो नहीं सका He goes to his chamber, और वो अपने मंदिर में जाते हैं, in his room. उनके कमरे में। Verse number 18. वचन 18। Then the king went to his palace तब राजा ने अपने महल में चला गया and passed the night fasting. और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। Neither were instruments of music brought before him, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई and his sleep went from him. और उससे नींद भी नहीं आई। When we read about fasting over here, we read Darius fasting because of what he did by signing that law.
यहाँ पर हम उपवास के ऊपर देखते हैं जो राजा है वो उपवास करता है इसीलिए क्योंकि जो कानून को उन्होंने बिठाया है उसके ऊपर। Because Daniel is in the lion's den. क्योंकि दानियल जो है सिंह के मांद में है। Darius is disturbed. यहाँ पर जो राजा है उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है अभी। And what he did was he went into his palace and he spent the night fasting. और वो अपने महल में जाता है और वो बिना भोजन करे वो रहता है। Now some of you may think like spend the night fasting, what does that mean? Maybe he ate at 8 o'clock and then whole night he fasted and in the morning he got up and had breakfast. आपको लग रहा रहेगा रात भर का मतलब यानी कि वो बीच रात में उठकर कुछ खाए या फिर सुबह को उठने के बाद फिर से वो खाए। Like that we all fast after breakfast, isn't it? और हम ब्रेकफास्ट के बाद हम वैसे फास्टिंग करते हैं। And break the fast in the lunch time. उसके बाद हम हमारा जो उपवास है उसको हम दोपहर के भोजन के समय हम तोड़ देते हैं। And then we all fast for the next 2 hours and then we had tea and biscuits or whatever in. और 2 घंटे के लिए हम वापस उपवास रखते हैं, उसके बाद शाम को हम वापस चाय बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। And then we fast for some more hours, like 2 hours or 3 hours, and then we have dinner. और फिर कुछ घंटों के लिए 1-2 घंटों के लिए हम फिर से उपवास रखते हैं, उसके बाद हम रात का भोजन करते हैं। After having dinner, then we fast for another 8 hours. रात के भोजन होने के बाद हम पिछले और आगे के हम 8 घंटे के लिए हम उपवास करते No, हैं। that's not the fasting that Darius is doing here. जो दरायस राजा ने किया वो फास्टिंग वो नहीं है। Here, this happened during the light time. और वो जो है उस समय ज्योति के दौरान ये जो है उस समय हुआ है। And when Daniel was put in the lion's den, और हम देखते हैं दानियल को सिंह के मांद में डाला गया है। Darius fasted not only with food. दरायस ने केवल जो है भोजन से जो उपवास नहीं किया। There are many other things that happened over there. और ऐसे बहुत सारी चीजें भी है जो उन्होंने किया है। When we talk about fasting, we think that fasting means saying no to food. जब हम उपवास के बारे में हम बात करते हैं हमें केवल लगता है कि हमें खाना नहीं खाना Then we है become busy with all other things. और हम क्या हो जाते हैं बाकी सब कामों से आप व्यस्त हो जाते Hey हैं। brother, where are you going? भाई आप कहाँ जा रहे हो? I have a very important business to look after, मेरे पास बहुत बिजनेस है मेरे पास, but I'm fasting today. लेकिन मैं आज उपवास कर रहा हूँ। What are you doing, brother? भाई आप क्या कर रहे हो आज? I'm posting some pictures on Facebook. फेसबुक में मैं कुछ फोटो वगैरह डाल रहा हूँ। I'm fasting today. मैं आज उपवास कर रहा हूँ। Because in our mind, we think fasting means food. क्योंकि हम हमारे मन में हम ये धारणा बना रखते हैं कि फास्टिंग मतलब खाना And everything else is okay. और बाकी सब हम कुछ भी हम कर सकते हैं। What happened to Darius here is he did the proper fasting. दरायस ने यहाँ पर क्या किया वो सटीक उपवास को उन्होंने किया। He allowed no entertainment in his life. उन्होंने कोई भी मनोरंजन को अपने जीवन में आने नहीं दिया। Which means if Darius had to be living now, अगर आज के समय दरायस को रहना था, and if he was fasting, अगर वो उपवास कर रहा था इस समय, he did not eat. उन्होंने नहीं खाया He did not take off his cell phones. और उन्होंने अपने मोबाइल को नहीं लिया हाथों He पर did not switch on his television. और टीवी को नहीं खोला उन्होंने He did not watch some entertaining programs. और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह टीवी में या फिर मोबाइल में नहीं देखे He was not spending time on the phones. और वो मोबाइल में समय नहीं बिता रहे He थे did not go to play. और वो खेलने के लिए नहीं He गए was थे, not reading his newspaper. उसके किताबों को नहीं पढ़ रहे थे उस समय, He fasted. लेकिन उन्होंने उपवास किया। He removed all distractions away from him. सारे जो डिस्ट्रैक्शन है वो सब अपने नज़रों से उन्होंने हटा दिए। Fasting means stripping your flesh. उपवास मतलब आप अपने शरीर को जो है शरीर को तोड़ना. आप क्या करते हैं उपवास के दौरान अपने शरीर को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। You are disciplining your flesh. आप अपने शरीर को जो है डिसिप्लिन में रख रहे हैं। Fasting means you are bringing your flesh under subjection of the spirit. और उपवास का मतलब जो है आप आत्मा के अधीन अपने शरीर को ले आते हैं। Now a lot of people think fasting means changing God's plan for me. और उपवास का मतलब हमें ये लगता है कि मेरे लिए जो है परमेश्वर की योजनाओं को बदल देना। I need to buy this thing. I'm going to fast and pray so God can give me. मुझे ये खरीदना है तो मैं क्या करूँगा, प्रार्थना और उपवास करूँगा ताकि परमेश्वर मुझे दे सके। I need to have those things. I will fast and pray so God can give me. और मुझे प्रार्थना उपवास करना है ताकि परमेश्वर मुझे दे सके। We think
or majority of Christians think fasting means to blackmail God to get your ways done for you. ज़्यादातर मसीह लोग ये समझते हैं कि उपवास रखना मतलब परमेश्वर को हम जैसे भी करके हम कुछ चीज़ों को छीन ले सके. It's like catching God's hand and say, you know, I'm fasting, you better give me. परमेश्वर के हाथ पकड़ के हम बोलते हैं कि बेहतर इसमें हो कि आप मुझे दे दें. You know, I fasted for 2 days. मैंने 2 दिन के लिए उपवास You रखा. better give me. बेहतर इसमें होगा कि आप Oh मुझे God, I'm fasting, give me. दें. परमेश्वर मैं उपवास कर रहा हूँ, मुझे दो. We think by fasting we can twist God. हमें लगता है कि उपवास रखने के दौरान हम परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं. Fasting doesn't change God. उपवास परमेश्वर का मन नहीं बदलता. Fasting changes you, उपवास जो है आपको बदल देता है, not God. परमेश्वर को नहीं. God cannot be changed, परमेश्वर नहीं बदल सकता, but fasting changes me. लेकिन उपवास मुझे बदलता है. Darius fasted. दरायास यहाँ पर उपवास किया He spent the night fasting. और वो रात भर बिताए बिना भोजन करे. And the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instrument of music brought before him. तब राजा अपने महल में चला गया और रात भर बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचा गया और उसे नींद भी नहीं आई. And sleep went from him. और जो नींद उसके आंखों से चले Now गई. I don't know whether he was praying, मुझे नहीं मालूम कि वो प्रार्थना कर रहा था फिर but he नहीं, was fasting. लेकिन वो उपवास कर रहा था. And when he fasted, he removed entertainment. जब उन्होंने उपवास किया सारे वो एंटरटेनमेंट को उन्होंने अपने जीवन से He हटा दिए. removed distractions away from him. सारे बाधाओं को उन्होंने अपने जीवन से हटा दिए. He said, you know, what I did is, it's foolishness. जो भी मैंने किया वो मूर्खता था. I just put a man of God in the into the lion's den. परमेश्वर के जन को मैंने सिंह के मान में डाल दिया. I know the God of the Bible is the true living God. मुझे मालूम है कि बाइबल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है. I'm going to fast now. अभी मैं उपवास करूंगा. I'm sorrowful now. अभी मैं दुखी हूँ I'm not going to have entertainment right now. और कोई भी एंटरटेनमेंट मैं अपने जीवन में नहीं रखूंगा. Darius teaches us one most important thing about fasting. दरायास हमें एक चीज को सिखाती है उपवास के ऊपर. When you fast, जब उपवास करते हैं you take away the entertainment. आप सारे मनोरंजन को अपने जीवन से हटा देते हैं. No distractions. कोई भी ऐसे भटका देने वाली चीजें नहीं रखेंगे. A lot of people think that fasting means not eating meals, और बहुत से लोगों को लगता है कि उपवास मतलब जो है हम खाना नहीं खा सकते. but they'll be busy with their phones. लेकिन लोग अपने फोन को लेकर बहुत ही व्यस्त रहेंगे. In this day and age, आज के समय में I watched one video about one guy. He made some people laugh about fasting. और मैंने एक वीडियो को देखा, वो उपवास को लेकर लोगों को हंसाते And हैं. I'm sure most of you might have seen that. It और became viral. और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी रहेगा. And he says, if you want to fast, अगर तुम्हें उपवास करना है, you fast from your Twitter, तुम अपने ट्विटर से जो है फास्ट कर सकते fast हो. from your Facebook, अपने फेसबुक से तुम उपवास कर सकते fast हो. from your WhatsApp, तुम्हारे व्हाट्सएप से तुम उपवास कर सकते हो. fast from your Instagram. तुम्हारे इंस्टाग्राम से तुम उपवास रख सकते And हो. if you can fast like this for at least one day, अगर तुम एक दिन के लिए ऐसा उपवास करते हो, God himself will come down and says, पगले बंद करो, रुलाएगा क्या? परमेश्वर खुद ही नीचे उतर के बोला कि बंद करो, रुलाओगे क्या? Because we are so hooked to the entertainments now. क्योंकि हम मनोरंजन को लेकर बहुत ही हम चिपक गए हैं. We can't give up our entertainment, but we may give up our phone, हम our हमारे food. मनोरंजन को हम त्याग नहीं दे सकते हैं. A lot of people can give up food, but not phone. बहुत से लोग खाना को बंद कर सकते हैं लेकिन अपने मोबाइल फोन को नहीं. And in this day and age, if you really want to fast, अगर इस समय में अगर आप वाकई में उपवास करना चाहते हैं, you'll have to fast what you like most. जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं उसका आप उपवास कर सकते हैं. Fasting is taking away that which is more precious to you. जो चीज़ आपके लिए बहुत कीमती है उस चीज़ के ऊपर आपको क्या करना है? उपवास करना है. The music was precious to the king. जो म्यूजिक है वो राजा के लिए बहुत ही बहुमूल्य थे. It made him relax, made him happy, made him comfortable. जो संगीत है उन्हें अच्छा महसूस होने के लिए हमेशा करते थे. But you know what he did? लेकिन राजा ने क्या किया? He took it away. सारे चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन से Of हटा course, we दिया. know the story later on when we see he goes and praises the God of Daniel because the lion's mouth was shut by the angel. और हम वहाँ पर देखते हैं कहानी में क्योंकि परमेश्वर ने जो है राजा सिंह के मुंह को बंद करते बाद में राजा जाकर परमेश्वर को आराधना करते हैं. Fasting is stripping off of your entertainment. और जो उपवास से आपके मनोरंजन को दबा के रखना होता है.
And that is serious business. और हमें उसको वाकई में गहराई से लेना चाहिए। It's not only about your food, ये केवल आपके खाने को लेकर नहीं, it's about your entertainment. लेकिन आपके मनोरंजन भी जो है You वो are उसके- setting a time only for God and for you, आप उस समय केवल समय को रखेंगे केवल आप खुद के लिए और परमेश्वर के लिए, seeking the face of God. परमेश्वर के चेहरा को, ताकि आप ढूंढ सके। Look at Daniel chapter 9, दानियल अध्याय 9 में हम खोलेंगे, verse number 3. वचन 3 में देखेंगे। We're not going to read verse number 1 and 2. It's speaking about the prophecy and all this thing, but I'm just taking you straight to what Daniel did when he came to know about this prophecy. तो वचन 3 में हम बस पढ़ेंगे, ऊपर हम भविष्यवाणी के ऊपर हम देखते हैं, लेकिन जो अध्याय वचन 3 है उसके ऊपर हम गौर करेंगे। When he came to know how the people of Israel are going to be in trouble, जैसे वो जानने के लिए उसको पता चल गया कि कैसे जो इजराइल के लोग परेशानी में, दिक्कत में पड़ने वाले हैं, he went in verse number 3. वचन 3 में, And I set my face unto the Lord God. तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट करके प्रार्थना To करने लगा, seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. और उपवास और ठाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। Fasting means to humbling yourself. उपवास मतलब आप खुद को नम्र बनाना, Because when you fast, you can get angry. क्योंकि जब उपवास करते हैं उस समय आप गुस्सा भी हो सकते हैं, Because you're hungry. क्योंकि आप उस समय भूखे रहते हैं। Whenever you're hungry, you get angry. Yes or no? जब भी आप भूखे रहते हैं उस समय आप गुस्से में हो जाते हो। Hunger brings anger. जो भूखापन है वो आपके अंदर गुस्सा ला सकता है। And fasting teaches us self-control. और उपवास जो है हमें खुद के ऊपर वश करने में हमें सिखाता है, It teaches us self-control. और हम खुद के ऊपर कैसे वश कर सकते हैं उसको हम सीख सकते हैं। The Bible says, And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. तो मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट करके प्रार्थना करने लगा, तब उपवास कर ठाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। You know what Daniel did? He humbled himself. दानियल ने क्या किया? अपने आप को नम्र किया। He says, Lord, I don't think too great about me. मैं खुद के बारे में महान नहीं सोच रहा हूँ, I humble myself before you. मैं आपके सम्मुख अपने आप को नम्र करता And in हूँ। the Old Testament, what they did was they put on sackcloths on them. और उन्होंने गंदे कपड़े जो है पहन लिए थे पुराने नियम में, Sackcloths. जो गंदे कपड़े होते हैं। Sackcloth is ganda. Sack जो होता है. जो घोनी के जो कपड़े होते हैं वो, And they put that on. They would put that and they would throw ash on them and they would pray. और वो And they would पहनकर fast. उन लोग क्या करते थे, जो राग होता है उन लोग अपने शरीर में उन लोग फैला देते थे और उन लोग उपवास करते थे उस It समय। was an external identity for people. I'm fasting. Don't trouble me. Don't disturb me. ये बाहर एक पहचान देती है कि मैं अभी जो उपवास रख रहा हूँ, मुझे आप तुम तकलीफ मत दो। I'm seeking the face of God. Please don't come and distract me. मुझे आकर तकलीफ मत करो, क्योंकि मैं जो है परमेश्वर का चेहरा को इस समय ढूंढ रहा हूँ। And it was a way of humbling before God. और एक ऐसा माध्यम था जो अपने आप को नम्र करना, Making yourself very humble. अपने आप को नम्र करना। Of course, in the New Testament, then the Lord puts us another way to do it. और नया नियम में परमेश्वर ने और एक माध्यम को रखा जैसे हम कर सकते हैं। But here we see Daniel stripping off his pride. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दानियल ने अपने घमंड को नीचे दबा के Remember, रखा। Daniel is a royal person in the palace right now. अभी दानियल जो है एक राजा के घर में, महल में रहते He's थे, having a high authority in the palace. और उस महल में उनके पास जो है अधिकार थे, He wears good clothes. और अच्छे कपड़े पहनते थे। But now when he's fasting, लेकिन अभी जब वो उपवास करते हैं he takes it off. और वो निकाल देते हैं, He humbles himself. अपने आप को नम्र करता है He makes him base. और वो अपने आप को नीचे दबाता है And he began to seek the face of और वो God. परमेश्वर के चेहरा को ढूंढने लगता है। When we fast, जब हम उपवास करते हैं we have to have one desire, हमें एक इच्छा रखना चाहिए अपने जीवन में, to seek the face of God.
परमेश्वर का चेहरा को ढूंढना। I want to seek God. मैं प्रभु को ढूंढना चाहता हूँ। I want to seek God for my life. मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर को ढूंढना चाहता I हूँ। want to seek God for His will in my life. उनकी इच्छाओं के लिए मैं परमेश्वर को ढूंढना चाहता I हूँ। want to seek the face of God so that I may be a useful vessel for God. ताकि मैं परमेश्वर के लिए एक बर्तन बन सकूं, इसके लिए मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा। I want to seek the face of God so that I may discern the right and wrong in this world. ताकि मैं गलत और सटीक चीजों को ताकि मैं स्पष्ट तरीके से देख सकूं, इसलिए मैं परमेश्वर का चेहरा को ढूंढूंगा। I want to seek the face of God so that I may please Him with my decisions in life. और इसलिए मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा ताकि मैं जो कुछ भी निर्णय अपने जीवन में लेता हूं उसके द्वारा ताकि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। Now you can lose a lot of weight by fasting, और उपवास करने के द्वारा आप अपने वजन को भी घटा सकते हैं, but that is not going to help you spiritually. लेकिन वो आत्मिक तौर से आपको मदद नहीं करेंगे। But that definitely will help you physically. लेकिन वो शारीरिक तौर से आपको मदद करेंगे। But then you'll become a moment of pride. नहीं तो क्या हो जाएंगे, आप अपने खुद के ऊपर घमंड कर You जाएंगे। know, I just gave up my food and I lost my weight. Look at me now. मैंने खाना बंद कर दिया, अभी मैंने अपने वजन भी घटा दिया, अभी मुझे देखो। But when you fast spiritually, लेकिन जब आत्मिक तौर से उपवास करते हैं it works in a different way. और वो अलग तरीके से काम करना शुरू It करता है, works in a different way on your flesh and in your heart and in your spirit and in your soul. आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपके प्राण में, आपके रूह में अलग तरीके से काम करने लगता है। Because when you're going to fast, so to lose weight, अगर आप अपने वजन घटाने के लिए उपवास करेंगे, the devil might help you also. शायद शैतान तुम्हें मदद भी कर सकता है, Because it's all about yourself. क्योंकि ये जो है आप केवल खुद के ऊपर सोच रहे हैं। Now, I'm not against it. और मैं उसके खिलाफ नहीं The हूँ, Bible is not against it. बाइबल उसके खिलाफ नहीं है, But it's all about the motive. लेकिन वो हमारा उद्देश्य। But when you're fasting spiritually, जब आप आत्मिक तौर से उपवास करते हैं to seek the face of God, परमेश्वर के चेहरा को ढूंढने के लिए, there will be distractions. बहुत सारे बाधाएं होंगे उस समय, There'll be temptations. परीक्षाएं होंगे, That is the time you'll feel like eating more. और उसी समय आपको लगेगा कि मैं और ज्यादा खा सकता हूँ, But if you खाऊंगा। want to fast to lose weight, then you are motivated to lose weight and you don't want to eat. अगर आप वजन घटाने के लिए कोशिश करेंगे तो उस समय शायद आप खाना भी बंद कर सकते हैं। I know about a Hollywood star. She loved to eat, मुझे हॉलीवुड स्टार एक मालूम है जो वो खाने के लिए बहुत पसंद करती थी, but she wanted to be skinny so she can be, in the magazine. और वो पतली बनना चाहती थी ताकि उसका जो छवि है वो मैगजीन में आ सके। So she would go in these big hotels and 5-star hotels and have the parties and eat very well as much as she wants. तो वो बड़े बड़े होटलों में जाते थे, पार्टीज वगैरह करती थी, जहाँ पर वो जाकर के खाया करती थी, And she would eat. और वो खाया करती थी And then बहुत, she will run to the washroom और वो वॉशरूम में जाती थी and she'll put her hands in the mouth और मुंह में हाथ डालकर and vomit everything. और वो उल्टी करती थी सब And कुछ, she continued this behavior और इस चरित्र को उसने लगातार रखा because she wanted to be skinny, क्योंकि वो पतली बनना चाहती but थी, she wanted to eat. लेकिन वो खाना भी चाहती थी। Spiritual fasting is different. आत्मिक जो उपवास है वो अलग है। Spiritual fasting will really work against you. जो आत्मिक उपवास से आपके खिलाफ काम करता The है, devil will bring a lot of temptation. शैतान बहुत सारे परीक्षाओं को ला There'll be देंगे, distractions. बहुत सारे ऐसे भटका देने वाली चीजें होंगी, And you need to keep your eyes on the Lord, लेकिन आपको उस समय अपनी नजर को यीशु की ओर बनाए रखना है, seeking the face of God. प्रभु के चेहरा को ढूंढते रहना है। When Daniel came to know about all these things, that when he got these revelations, when this prophecy came to him, the one thing he did was he set. The Bible says, "I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication and fasting and sackcloth and ashes." तब मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट से प्रार्थना करने लगा, तब उपवास और ठाट पहन और राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। Fast if you can, keep yourself away from all the distractions. अगर आप सारे ऐसे भटका देने वाली चीजों से दूर रखना चाहते तो आप उपवास कर सकते हैं। I really don't understand some people who say, "I'm fasting today, but I'm going to work." बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आज उपवास कर रहा हूँ लेकिन मैं काम भी कर रहा हूँ, But you're not able to pray. लेकिन उस समय आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। Fasting goes hand in hand with prayer. उपवास जो है वो प्रार्थना के साथ साथ चलने चाहिए। So the Bible never forces you to fast. बाइबल आपको कभी भी जो है धकेलेंगे नहीं कि तुम फास्टिंग करो, But if you can and if you want, then keep yourself away from distractions लेकिन- and praying. लेकिन अगर आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो सारे भटका देने वाली चीजों से आप अपने को दूर रखें। Now can I tell you something मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा इस समय, more secret, और रहस्य चीजों को, more powerful than fasting? और फास्टिंग से भी ज्यादा बेहतर शक्तिशाली। Listen to me carefully.
ध्यान से सुने इस समय, God can answer your prayer even without fasting. बिना उपवास के भी परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब दे सकता है। You believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? But why we fast? लेकिन क्यों हम उपवास करते हैं? We are not fasting so we can get our prayers answered. ताकि हमारा प्रार्थना का जवाब मिले, इसलिए हम फास्टिंग नहीं करते हैं। Those are wrong motives. वो गलत विचार है। I'm going to fast so I can get these things done. मैं इसलिए उपवास करूंगा ताकि मेरा काम ठीक हो जाए। You can just pray and God will answer you. आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रार्थना का जवाब दे He's सकता your है। Father. वो तुम्हारा पिता है। In fact, the Bible says He gives you even before you ask. और लिखा है कि वो आप मांगने से पहले वो तुम्हें दे देता है। But fasting is for yourself. लेकिन उपवास जो है वो आपके खुद के लिए है, So you can draw near to God. ताकि आप परमेश्वर की और नजदीक जा So सके, you can become humble. ताकि आप नम्र बन सके, So your thoughts and your desires become pure. ताकि तुम्हारे सोच, तुम्हारी इच्छाएं जो है शुद्ध हो सके, So you draw nearer and nearer to God. ताकि आप प्रभु के और भी निकट जा सके। Of course, there are great benefits in fasting. उपवास करने से बहुत सारे फायदे भी होंगे। And Daniel began to seek the face of God. लेकिन दानियल ने परमेश्वर का मुख को ढूंढना शुरू किया। So when you fast, you strip yourself from all entertainment. जब उपवास करते हैं, सारे मनोरंजन से आप दूर रखें अपने आप को। When you fast, you seek the face of God. जब उपवास करते हैं उस समय आप प्रभु के मुख को Now, ढूंढ सकते हैं। some of you might have fasted in such a way and went to work and went to all. I have done that too. और आप में से शायद बहुत से लोगों ने ऐसे किए रहेंगे, उपवास करते हुए आपने बाहर गए, काम करने गए। And it is not to discourage anyone. और ये आप लोगों को निराश करने के लिए नहीं बोल रहा Sometimes हूं। that is the only opportunity we get to fast. क्योंकि कभी कभार वही हमें मौका मिल जाता है उपवास करने के लिए। And so I'm not trying to discourage you from doing that. मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ उस But I'm काम just trying करने to से। say this to you. When you fast, prayer and fasting goes hand in hand. लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब उपवास करते हैं आप उसी समय उपवास करें और उसी समय प्रार्थना भी करें। Because if you're fasting and you go to work and there is some problem, you get angry, everything is gone. क्योंकि अगर आप उपवास करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ चीजों को सटीक होते हुए नहीं देखते, उस समय आप गुस्सा हो जाते हैं। And you fast and you go and you see these billboards of a very seductive woman and your temptations is come, you're gone. और आप जब उपवास करते हुए बाहर जाते हैं, बहुत से ऐसे बोर्ड देखते हैं जहां पर बहुत से ऐसे लालसा वाली चीजें, फोटोज वगैरह लगा लेते हैं, तो आप परीक्षा में पड़ जाते हैं। And you're fasting and your phone is in your hand and you're watching reels over and over again, it's gone. Your fasting is gone. जब उपवास करते हैं, मोबाइल में बहुत सारे रील्स देखते हैं, तो आपका उपवास जो है वो व्यर्थ हो जाता है It becomes a distraction. और वो हमारे भटका देने वाली चीजें हो जाती है। No, it is that fasting is separating yourself away from the world, seeking the face of God. उपवास के दौरान आपको क्या करना चाहिए? संसार से आप अपने आप को दूर रखें और प्रभु के साथ आप बने रहें। Stripping yourself of all entertainment सारे मनोरंजन से आप अपने आप को दूर रखें and becoming humble before God. और प्रभु के सम्मुख आप अपने आप को नम्र बनाएं। God is also commanding us to fast sometimes. और कभी कभार परमेश्वर हमें यह आज्ञा भी देता है ताकि हम उपवास करें। Look at Joel chapter 2. जोएल अध्याय 2 में हम खुलेंगे। It's regarding the terrible day of the Lord, about the coming tribulation. और आने वाले जो क्लेश है उसके ऊपर है। And the Lord is going to pour out His anger on this earth. परमेश्वर अपने क्रोध को इस संसार में उंडलने वाले हैं। And that the Lord is commanding, before His anger comes, He is commanding the people to fast. और परमेश्वर क्रोध आने से पहले संसार में परमेश्वर लोगों को कह रहा है कि उपवास करो। I would encourage you to go home and read this chapter if you will. मैं उत्साह करूंगा कि अगर आप चाहे तो घर में जाके इस पूरे अध्याय को पढ़ सकते But हैं। look what God says in verse number 12. वचन नंबर 12 में देखो परमेश्वर क्या कहता है। Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart. You see that word, all your heart? Everybody say, all your heart. All your heart. Which means if you're going to fast, you better give the Lord all your heart. अगर आप उपवास करते हैं, आपको क्या करना है? अपने पूरे मन को प्रभु को देना है। All your heart means all your thoughts. पूरे मन यानी कि पूरे सोच को आपको देने हैं। All your attention to तुम्हारे God. सारे ध्यान को प्रभु को देना है Completely. पूरी तरीके से। And ladies, if you're going to fast, why don't you talk to your husband and says, allow me to fast today. You cook
You take care of it if you can allow me to fast today. अगर घर में महिलाएं अगर उपवास करना चाहती है तो अपने पति से कह सकती है कि आज आप मेरे लिए खाना बनाएं ताकि मैं उपवास कर सकूं। Or you cook a day before and keep it ready, and then you can fast the next day. You can have your ways done. या फिर पिछले दिन ही आप जो है खाना को तैयार करके रख सकते हैं ताकि दूसरा दिन जो है किसी को कोई दिक्कत ना आए। Otherwise, it will be a distraction for you. नहीं तो आपके लिए बहुत से ध्यान भटका देने वाली चीजें होंगी। I'm fasting today, मैं आज उपवास रख रही हूँ but I need to cook. लेकिन खाना भी बनाना है I need to मुझे, cook for my children. I cook for my husband. मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए मुझे खाना बनाने हैं। I don't know if the salt is. नमक लगा के नहीं लगा पता नहीं, आप I'm fasting. चख कर देख सकते हैं, I देखते don't हैं want उस to समय taste it. आपने चख लिया ऑलरेडी। Does this happen? क्या ये होता है ऐसा घरों में? I'm just imagining. मैं बस सोच रहा हूँ अभी मन में। And then like, oh man, the curry was tasty, but and then there's a sound in the tummy. Right? Because the appetite comes up. उस समय आप क्या करते हैं? खाना वगैरह को चखते हैं उपवास करते वक्त, तो ऐसे नहीं करने चाहिए। And when you're fasting, it should be an understanding where the husband should support the wife. Because I know mostly it is women who do the fasting. क्योंकि समझने उस समय पतियों को भी समझना है, जब पत्नी जो है उपवास करती है उस समय पतियों को समझना है। And they should give them this freedom. It's love. If your wife wants to fast, you show your love by allowing her to seek the face of अगर आपकी God. पत्नी उपवास करना चाहती है तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें मदद करना चाहिए, सपोर्ट करना So चाहिए, you can warm up the food and you can eat and ताकि- you can take care of the kids that day. ताकि आप उस दिन में क्या कर सकते हैं? खाना खुद ही गर्म कर सकते हैं और बच्चों को संभाल भी सकते हैं। So your wife can shut herself in the room and pray. ताकि आपकी जो पत्नी है आप कमरे में अपने आप को बंद करके प्रभु से समय बिता सके। And we should allow these things. और हमें ये चीजें अनुमति करनी चाहिए। And if the husband wants to do it, then the wife should support this. अगर पति करना चाहते तो पत्नी जो है ये सब चीजों में सपोर्ट करनी चाहिए। I know I was in Nepal and I was eating with these orphanage children. मैं नेपाल में था और अनाथ बच्चों के साथ मैं खाना खा रहा था उस समय, And we were all sitting down and eating. और हम सब नीचे बैठकर खा रहे थे। And this girl was about 5 years old. और एक लड़की है 5 साल की, वो She was just sitting next to me. और वो मेरे बाजू में बैठी हुई थी। This is in 2009. और ये 2009 की बात है। And we were eating. और हम जब We were sitting to eat. और हम खाने के लिए बैठ रहे थे, And this child began to eat the food. और ये छोटी सी बच्ची वो खाना खाने के लिए शुरू कर दी। Suddenly she realized nobody prayed for the food. और वो अचानक उसको पता चला कि किसी ने प्रार्थना नहीं किया खाने के She लिए। put all the food from the mouth on her plate सारे खाना को मुंह से वापस निकाल दिए और प्लेट में रख दिए, because she wanted to pray before क्योंकि वो eating. खाना खाने से पहले प्रार्थना करना चाहती थी। Look at Joel chapter 2 verse 12. जोएल अध्याय 2 वचन 12। Therefore also now saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning, and rend your heart and not your garment, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटने अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं पर अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर की यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। Fasting does not mean you have to fast whole meal. उपवास का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे हफ्ते भर उपवास करने हैं, No, whole meal. पूरे जो Morning- खाना है ताकि आप उसको ना खाएं। Now, if you are able to do that, praise the Lord for it. अगर आप वो कर सकते हैं तो प्रभु को धन्यवाद हो। But if you can miss one meal with no distraction and totally seek the face of God, that is more of a beneficial thing. अगर एक वक्त का खाना अगर आप ना खाएं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है, तो हम समझ सकते हैं उसको। So you're just seeking the face of God with all your heart. आप पूरे हृदय से परमेश्वर के चेहरा को ढूंढते हैं। The whole point here is that you are seeking God with all your heart. और हमारा पॉइंट क्या है कि आप प्रभु को अपने पूरे मन से ढूंढते हैं, That is the point here. और वही एक अंश है Seeking God with all your heart. कि आप पूरे मन से प्रभु को ढूंढें। So you are able to pray. तो आप प्रार्थना कर सकते You're not हैं, you're distracted आपका ध्यान नहीं भटक with रहा है, all the responsibilities. जो भी कर्तव्य वगैरह है काम
no entertainments, कोई भी मनोरंजन नहीं, no gadgets. कोई भी गैजेट्स नहीं। Just pray before God आप and केवल seek His face. प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करें, प्रभु के चेहरा को ढूंढते रहें। God is commanding these people before the judgment comes, you fast and pray. और न्याय आने से पहले परमेश्वर यहाँ पर लोगों से आज्ञा देता है ताकि लोग उपवास और प्रार्थना करें। So fasting is God's command. तो उपवास करना परमेश्वर की ओर से Now it's not आज्ञा saying है। do it all the time, परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि हमेशा किया करो, but He is giving a command to the people. It's good to fast. लेकिन ये परमेश्वर लोगों को आज्ञा दे रहा कि अच्छी बात है उपवास करना, And we should try to fast. और हमें भी कोशिश करनी चाहिए उपवास करने के लिए। Those who have not should try to fast. जिन लोगों ने अभी तक नहीं किए उन लोग को कोशिश करनी चाहिए करने के लिए। So how to fast? तो कैसे हमें उपवास करने हैं? It is giving up your meal, आप अपने खाना को बंद कर दें at the same time giving up your entertainment, और उसी वक्त अपने मनोरंजन को भी आप त्याग दें, protecting yourself and keeping yourself away from distractions. और सारे भटका देने वाले चीज़ों से आप अपने आप को क्या करें, दूर रखें। When Jesus fasted, He took Himself away from the world. जब यीशु ने उपवास किया, यीशु ने अपने आप को संसार से दूर रखा He went into the wilderness. और यीशु ने जंगल की ओर गया। Look at Matthew chapter 4, मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 4 में verse number 1 through 10. 1 से लेकर 10 तक। In Matthew chapter 4, the Bible says in verse number 1, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. तो आत्मा यीशु को जंगल में ले गया था कि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। Jesus is in the wilderness. यीशु यहाँ जंगल में है। And when He had fasted 40 days and 40 nights, He was afterward and hungered. वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। And then we see a lot of temptations. और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे परीक्षाओं को देखते The हैं। lust of the eyes, आंखों का अभिलाषा, the lust of the flesh, शरीर का अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का घमंड। Turn the stone into bread. और पत्थर को रोटी बना दो। I will give you all of this if you can worship me. अगर मुझे मेरी इबादत करोगे तो मैं सारे चीज़ों को तुम्हें दे सकता Throw हूँ। yourself down, the angels will catch you. अपने आप को गिरा दो और स्वर्गदूत तुम्हें आके पकड़ लेंगे। Many temptations. बहुत सारे परीक्षाएं। But you know what fasting does? लेकिन उपवास क्या करता है? The Lord gives you greater authority. परमेश्वर तुम्हें और अधिकारों को देते हैं। In fact, verse number 10. वचन 10 में Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan. तो यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, For it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देख स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगा। Fasting gives you power over the devil. उपवास जो है शैतान के ऊपर आपको सामर्थ्य को देता है अतिक्रम करने के लिए। Now, fasting does not make you more powerful than the devil. और उपवास जो है शैतान से अधिक आपको शक्तिशाली नहीं बनाता है। Now, you are not powerful than the devil. आप शैतान से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, Only God is powerful. केवल परमेश्वर शक्तिशाली है। Remember, Satan is mighty. शैतान जो है शक्तिशाली है, God is almighty. लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान But है। you are not mighty. लेकिन आप शक्तिशाली नहीं हो। It is foolishness for people on the TV and on internet trying to say, I bind the spirit of corona, I bind the spirit of corona, and people dying all over there because of corona. मूर्खता की बात है जब लोग कहते हैं मैं यीशु के नाम से इस कोरोना की आत्मा को बांधता हूं और लोग कोरोना से मर रहे हैं। Even today, everybody is binding the devil on the TV and in the churches. और आज भी लोग जो है कलीसियाओं में शैतान को बांधते रह रहे हैं। Satan, I bind you in the name of Jesus. यीशु के नाम से मैं शैतान को बांधता हूं। And another church, another pastor is saying, Satan, I bind you in the name of और Jesus. दूसरे कलीसिया में दूसरे पास्टर बोलता है शैतान मैं तुम्हें बांधता हूं यीशु के नाम Thousands of से। pastors around the churches are saying, Satan, I bind you in the name of Jesus. और हजारों कलीसियाओं में पास्टर लोग कहते हैं यीशु के नाम से शैतान को मैं बांधता हूं। My question is, who is setting him free? और मेरा प्रश्न ये है कि उन्हें कौन जो है आजाद कर रहा है? Thousands of fellows are saying, I bind you. Somebody is leaving him free, right? हजारों लोग कह रहे हैं कि शैतान को मैं बांध रहा हूं और कोई तो उन्हें आजाद कर रहा है। God never gave you and me the power to bind anyone. परमेश्वर ने हमें The ये devil. सामर्थ्य को नहीं दिया कि हम शैतान को बांधें। God says, resist the devil and he will flee from thee. यीशु ने कहा कि तुम शैतान से दूर रहो और शैतान तुमसे दूर भागेगा। Why binding and doing what? In the bottle you're putting?
क्या आप शैतान को बोतल में डाल रहे हो? You know, you remember? You go to a Muslim fellow and tell him, and then he throws, he'll hit you with the jadoo and says, okay, I caught the evil spirit, put him in a bottle, I locked him inside. और आप मुसलमान लोगों के पास जाओ, झाड़ू लेके आपके सिरों में मारेंगे और दुष्ट आत्मा को आपके शरीर से भगाएंगे और कहेंगे बोतल में मैंने उसे डाल दिया है। And he says, keep 15,000 here and you go, I'll pray for you. 15,000 यहाँ पर रखो, मैं तुम्हारे लिए। Those things happens. और ये सब चीजें होती रहती है। No. God says, draw near to me and I will draw near to you. प्रभु ने कहा कि तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। Resist the devil and he will flee from you. और शैतान तुमसे दूर भागेगा। How do you resist the devil? शैतान का कैसे सामना करना है? By humbling yourself before God. प्रभु के सम्मुख आप अपने को नम्र कर सकते By हैं, seeking the face of God. प्रभु के मुख को ढूंढने से। That's why the Lord said, put on the whole armor of God इसलिए क्या- and stand. और इसलिए कहा कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो और खड़े रहो। The Lord did not say, go and fight with the devil. यीशु ने नहीं कहा कि तुम जाके शैतान से लड़ो। He said, you put on the armor of God and you stand against the wiles of the devil. यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो और शैतान के विरुद्ध तुम खड़े रहो। I mean, the battle belongs to the Lord, the Bible says. जो युद्ध है वो परमेश्वर का है, बाइबल कहती है। Why are you fighting the devil? क्यों तुम शैतान के खिलाफ लड़ रहे हो? Who told you to fight the devil? किसने आपको कहा कि तुम शैतान से लड़ो? You are told to fight the good fight of faith. तुम्हें कहा कि तुम विश्वास का, अच्छा विश्वास का तुम लड़ो। The problem is we are not able to win souls because of fighting the devil instead of fighting the good fight of faith. हम क्या कर रहे हैं? शैतान से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम अच्छा विश्वास का लड़ाई को हम नहीं That's a लड़ पा रहे। distraction. वो हमारा भटका देने वाली चीजें हैं। We should not be talking too much of the devil and fighting with the devil. We should be drawing to God. हमें शैतान के खिलाफ ऐसे लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें प्रभु के निकट जाने हैं। The one within us is greater than the one who is without. जो अंदर महान है, जो बाहर है उससे भी जो अंदर है वो महान है। The Lord is within us. प्रभु हमारे अंदर है। The Lord will fight your battle. परमेश्वर तुम्हारे लड़ाई को लड़ेंगे। He is more powerful. वो और शक्तिशाली है। He did not tell you to go and throw the devil down. यीशु ने नहीं कहा कि तुम शैतान को जाके नीचे से फेंको, ऊपर से फेंको। In fact, in the book of Revelation, the Bible says one day the Lord is going to bind the devil under the earth. प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो परमेश्वर है शैतान को बांधेंगे संसार And he में, is going to bind with a chain. और जंजीर से उन्हें बांध And देंगे, the key is in the hand of the angel. और स्वर्गदूत के पास चाबी है। And so, to bind the devil, you need a key and you need a chain. और शैतान को बांधने के लिए आपको जंजीर और चाबी की जरूरत होंगे। The Bible says in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य में बाइबल वही बताती है। you don't have the key and the chain. आपके पास जंजीर और चाबी नहीं है, That key and the chain is given by God to the angel in the और वो Bible. जंजीर और चाबी जो है परमेश्वर की ओर से दिया गया है स्वर्गदूत को, And one day he will be binded और एक दिन उसे बांधा जाएगा। in the bottomless pit. और ऐसे जगह में बॉटमलेस पिट में, Right now, he's the king of the air. He's the अभी God वो- of this world. इस संसार का राजा है शैतान। And we are telling, hallelujah, hallelujah, bind the devil. What is this? और हम कहते हैं हालेलुया और शैतान को बांधो, हम ये कहते रहते हैं। You need to seek the face of God. आपको प्रभु के मुख को ढूंढते रहना You है, need to draw closer to आपको God प्रभु के निकट जाना है, with all your heart, पूरे हृदय से, with all your mind, पूरे मन से, with all your strength. पूरे शक्ति से। God will fight your battle. परमेश्वर तुम्हारे लड़ाई को लड़ेंगे। Fasting is commanded by God, और उपवास प्रभु की ओर से आज्ञा दिया गया है। but when you fast, God gives you the power to resist the devil. उस समय आप क्या 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 पाते हैं? परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य को पाते हैं शैतान के खिलाफ जाने के लिए। The Lord will cast the devil out. परमेश्वर शैतान को आपके जीवन से फेंकेंगे। The Lord will rebuke the devil away. परमेश्वर शैतान को डांटेंगे। And the Lord Jesus says, और get यीशु- thee hence, Satan. और यीशु कहता है कि तुम मेरे से दूर हो जाओ शैतान, Get away. मेरे से दूर हो जाओ। And the devil leaveth him, the Bible और says. बाइबल कहते हैं कि शैतान यीशु को छोड़ के जाते हैं। So when we fast, जब हम उपवास करते हैं, we give more of ourselves to God. हम खुद को प्रभु को हम दे देते हैं। When we give ourselves to God, जब हम खुद को प्रभु को देते हैं, God takes control of yourself. परमेश्वर हमें क्या करते हैं? अपने वश में करते हैं, And he takes care of the devil's और वो शैतान को भी business. संभाल लेते हैं। We are wasting time by fighting the devil unnecessarily. और बिना कोई मतलब कि हम क्या कहते हैं, समय को हम व्यर्थ कर रहे हैं शैतान When से लड़ने actually से। it is God's battle. लेकिन वो परमेश्वर का लड़ाई है। Matthew chapter 17. मत्ती अध्याय 17 में देखेंगे। Matthew chapter 17.
मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 17 verse 15 to 21. 15 से 21 तक Look what Bible says. देखिए यहाँ पर बाइबल क्या कहती है। Here what happened, verse number 15, somebody brought their son, he was lunatic, and he throws himself in the fire and into the water, and so he brings them to the disciple, and they could not cast the devil away. किसी ने अपने बेटा को लेकर आया जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी Or they couldn't cure him, sorry. और जो चेले हैं उन्हें सही नहीं कर पाए। Verse number 16, and I brought him to thy disciples, and they could not cure him. मैंने उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वो वैसे अच्छा नहीं कर सके। And Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. यीशु ने उत्तर दिया है, अब अविश्वासी अटिल लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, Verse यहाँ number मेरे पास ले आओ। 18, Jesus rebuked the devil, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा and he departed out of him. और वो उसमें से निकल गई And the child was cured from that very hour. और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। And then the Bible says, then came the disciples to Jesus apart and said, why could not we cast him out? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? Jesus said unto them, because of your unbelief. यीशु ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove. क्योंकि मैं तुमसे ये सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा। And nothing shall be impossible unto you. और पर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होंगे। Howbeit this kind goeth not out but by prayer and पर ये fasting. जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। The Lord is saying, when you're fasting, prayer should be accompanied. लिखा है, अब प्रभु कहता है कि जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारा प्रार्थना भी साथ साथ होना So चाहिए। when you fast and pray, जब उपवास और प्रार्थना करते हैं, God gives you power. प्रभु आपको सामर्थ को देता है God gives you power to, and your prayer becomes powerful. और तुम्हारा प्रार्थना शक्तिशाली हो जाता है And God answers the prayer. और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे And देता है God will heal the people. और परमेश्वर लोगों को चंगाई देता है। Recently, one lady called me up. और कुछ ही दिन पहले एक लड़की ने मुझे कॉल की, Not ladki, a lady called me up. एक स्त्री ने मुझे फ़ोन की Middle of the night. और रात के बीच में, I looked at the call. और मैंने कॉल को देखा। It's like, man, 2:30, who is calling me? 2:30 बज गया, किसने मुझे कॉल किया? I didn't answer. मैंने जवाब नहीं दिया And then morning I got a call again. और सुबह को मुझे वापस कॉल आए It says, pray for this child. और कहने लगे कि प्लीज़ इस बच्चे के लिए प्रार्थना करें And this child is sick. और ये जो बच्चा है वो बीमार है, And please pray. कृपया प्रार्थना करें। So I prayed. तो मैंने प्रार्थना किया I begged God for healing. और मैंने परमेश्वर से दुआ मांगे ताकि परमेश्वर ने चंगाई दे। I said, the Lord will heal this child. और मैंने कहा कि परमेश्वर इस बच्चा को जरूर से चंगाई देंगे। And you will take the child home very soon, in a और couple of days. बहुत 2 days. बहुत Or 3 days. 2-3 दिन के अंदर तुम अपने बच्चे को वापस ले जा सकते हैं। And when you're done, you bring that child to the church so I can pray. जब आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे तो आप कलीसिया में लेकर आएँ ताकि मैं आपके बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकूं। The child went home. और उसका जो बच्चा है वो घर में गया The child was fine. और उसका जो बच्चा है वो ठीक हो गया। I didn't know what happened after that. उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता चला कुछ भी, Never heard what happened to the child. और कभी भी नहीं सुना कि उसके बच्चे को क्या हुआ वापस। We all need prayer, हम सबको प्रार्थना की ज़रूरत है, but we don't want to give God the glory for the healing. लेकिन चंगाई के लिए हम प्रभु को महिमा नहीं देना चाहते हैं। I said, bring the child to the church. मैंने कहा कि तुम अपने बच्चे को कलीसिया में लेकर आओ, When the child will be fine and healed. जब आपका बच्चा सटीक होंगे उस समय लेकर आए। And many times we ask God for healing, but we don't give Him the glory. बहुत सारे समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु देते हैं और हम प्रभु को महिमा नहीं देते हैं। But when you fast and pray, लेकिन जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, God gives you the power प्रभु आपको सामर्थ को देता है to pray for the sick, ताकि आप बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें, so they can be healed. ताकि उन लोग चंगाई पा सके। You don't have to lay your hands on anyone for the devil to be cast out. आपको किसी के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करने की जरूरत ताकि उसके
शरीर से शैतान चले With जाएंगे। all your heart and mind, if you seek God, अगर आप पूरे हृदय मन से प्रभु को ढूंढें, before you enter into that room, the devil will be out of that room. उस कमरे में प्रवेश करने से पहले शैतान उस जगह से चले जाएंगे। One day when I entered into a house in Andhra Pradesh, आंध्र प्रदेश में मैंने एक घर में गया, and as I entered into that room, जैसे मैंने उस कमरे में प्रवेश किया, the lady looked and laughed at me. उस स्त्री ने मेरे ओर देखकर हंसने लगी And I asked the pastor, what's wrong here? और मैंने पास्टर से पूछा क्या हो रहा है, And he says, this lady is always tormented. और कहता है कि ये जो स्त्री है हमेशा उसको पीड़ा होती है। So the lady said, you come to pray for me? और कहने लगे कि क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आए हो? I'm sitting on the tree up there. मैं उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ हूँ। You don't have to lay your hands on anyone. आपको किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। I shared the gospel to this lady. और उस स्त्री से मैंने शुभ समाचार को सुनाया That lady got saved. और वो स्त्री उद्धार पाई The devil was out of her. और जो शैतान है उसके जीवन से चले गए। चले गए। We don't need dramas. हमें नाटक करने की जरूरत नहीं। Dramas happen only for TV and internet. और टीवी इंटरनेट वगैरह में ही जो ड्रामा So the preachers can become popular. ताकि प्रचारक बहुत ही पॉपुलर बन सके, So people can look at those YouTube videos and reels and come to the church. ताकि लोग YouTube में देख सके और उसके कलीसिया में आ Have सके। you seen some videos where the pastor says, "Zoo"? Have you ऐसे seen देखे one रहेंगे guy with a white shirt and a white pant in Tamil Nadu? आपने देखे रहेंगे इससे बहुत सारे वीडियोस। And then all the ladies in there, oh man, it's a shame to say that this happens in churches. लेकिन ये शर्म की बात है कि ये कलीसिया में होती है आजकल। And then he says, you buy my CD, evil spirit goes out of your और house. कहता है कि मेरा सीडी को तुम खरीदो, तुम्हारे शरीर से तुम्हारे घर से दुष्ट आत्मा चले जाएंगे। We are making fasting as a technique to twist the hand of God. हम क्या कर रहे हैं, उपवास को ऐसा टेक्निक हम कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के हम हाथों को ताकि उलट पुलट कर सके। Fasting is changing myself. उपवास जो है मैं खुद को बदल सकता है। God uses our sacrifice to purify ourselves, परमेश्वर हमारे बलिदानों को इस्तेमाल करता था कि वो हमें शुद्ध कर to सके, make our mind pure, ताकि हमारा मन को शुद्ध कर सके, to control our body and bring unto subjection, ताकि हम हमारे शरीर को कंट्रोल में ला सके, to seek the face of God, ताकि हम प्रभु के चेहरा को ढूंढें, to have power over distractions. ताकि सारे बाधाओं के ऊपर, सारे आपत्तियों के ऊपर, ताकि हम अतिक्रम कर सकें। Jesus said, when you fast, you need to pray. प्रभु ने कहा कि जब तुम उपवास करो उस समय तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए। When you fast and pray, God gives you the power. जब तुम उपवास और प्रार्थना करोगे परमेश्वर तुम्हें सामर्थ को देंगे। And that's what Jesus says, howbeit this kind goeth not, but by prayer and fasting. इसीलिए कहता है पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। Prayer and fasting is still God's ways of working in our heart deeply. अभी प्रार्थना और उपवास जो है परमेश्वर का एक माध्यम है, जरिया है जहाँ से हमारे प्रार्थना को सुना जाता है। I'll give you 2 more verses and we finish here. और 2 वचन मैं आपको दूंगा और समाप्त करेंगे। Look at Matthew chapter 6 maybe. Matthew chapter 6. मत्ती अध्याय 6। In the Old Testament we saw when they fasted they put their sackcloths and ashes on them. और पुराने नियम में जब आप देखते हैं उन लोग अपने शरीर में धूल को डालते थे और सैकलोन उन लोग डालते थे उस समय। But in the New Testament the Lord says something else. लेकिन नया नियम में प्रभु कुछ और कहता है। Look at Matthew chapter 6 verse number 16 onwards. मत्ती 6 वचन 16 से हम देखेंगे। Your fasting should be secret and it should be fresh. तुम्हारा जो उपवास है वो रहस्यमय होना चाहिए और वो ताजा होना चाहिए। Your fasting should be secret and should be fresh. तुम्हारा उपवास रहस्यमय और ताजा होना You चाहिए। notice today in what I said, I did not give you big hopes about fasting. मैंने उपवास को लेकर आपको एक आशा भी नहीं दिया है। If you fast, that this will happen, that will happen, great things will happen. No. Fasting will only change yourself. मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि तुम उपवास करो तो तुम्हारे जीवन में ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन मैंने कहा कि आपका जीवन बदलेगा। It's not going to change God. ये प्रभु को नहीं बदलेगा। But look, when you fast, what you need to do. लेकिन जब तुम उपवास करो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? Verse number 16 and 17. वचन 16 और 17। Moreover, when you fast, जब तुम उपवास करो be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward.
तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, और मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। Because if you are fasting and if everybody comes to know and you say, I'm fasting, like, really? You're fasting? Wow, that's great, man. क्योंकि लोगों को अगर पता चले कि मैं उपवास कर रहा हूँ तो लोग कहेंगे वाह बहुत अच्छे। When someone already says, wow, that is great, you already got your reward on earth. You lost your reward of heaven. जब लोग आपको देखकर कहेंगे वाह महान बहुत अच्छे, तो आप अपना प्रतिफल इस संसार में पा चुके, लेकिन स्वर्ग का प्रतिफल आप खो देंगे। I just broke many hearts, isn't it? मैंने बहुत से लोगों का दिल को तोड़ दिया इस समय शायद, But that's the fact. लेकिन वही सच है। When people come to know and they say, wow, you already got your rewards on earth. जब लोगों को पता चलेंगे कि आप उपवास कर रहे हैं और कहेंगे वाह, तो आप अपना प्रतिफल पा चुके हैं। Now, that I'm saying when you really want everybody to know, I'm fasting today, I'm fasting today. ये तभी कह रहा हूँ जब आप चाहेंगे कि लोग जो है जाने कि आप उपवास कर रहे हो। Because if your fasting is just so that everybody comes to know how spiritual you are, अगर आपका उपवास का लक्ष्य यही है कि ताकि लोग जाने कि मैं कितना महान, कितना स्पिरिचुअल धार्मिक व्यक्ति हूँ, it may not help you spiritually, it may help you physically. शायद वो आत्मिक तौर से आपको मदद नहीं करेंगे, लेकिन शारीरिक तौर से आपको मदद मिल सकती है। Look what Jesus said. देखेंगे यीशु क्या कहता है Verse यहाँ number 17. पर, वचन 17 में, But thou, when thou fastest, anoint thy head. परंतु जब तू उपवास करे अपना सिर पर तेल मल। Now I cannot anoint my head. मैं अपना सिर में बाल में तेल नहीं डाल सकता, It's not going to stay there. वो वहाँ पर नहीं रहेंगे, But you anoint your head. लेकिन आप अपने सिर में तेल डाल सकते हैं। But thou, when thou fastest, anoint thine head and wash thy face. जब तू उपवास करे तो अपना सिर पर तेल मल और मुंह धो। What's this? Be fresh. प्रभु कहता है कि तुम ताजा रहो। In the Old Testament, put the sackcloth and ashes on you. पुराने नियम में क्या करते हैं लोग? सेक्युलर और धूल अपने शरीर में लगाते थे, And be like, well, I'm fasting. और मैं उपवास कर रहा हूँ। But in the New Testament, लेकिन नया नियम में you put hair आप तेल लगाओ सिर पर, or maybe gel. या फिर जेल लगा सकते हैं You look fresh. फ्रेश दिखने के लिए, Have bath. या फिर नहा सकते Put हैं, oil for your head. सिर में तेल लगाओ, Wash your face. अपना मुंह को धो सकते हैं, Look fresh. आप फ्रेश दिखेंगे, And pray secretly. और आप रहस्यमय से रहकर प्रार्थना करें, This is, don't let anybody know that you're fasting. ताकि कोई ना जाने कि आप उपवास कर रहे हो। Hey brother, what are you doing? भाई तुम क्या कर रहे हो? You've got some work to do? क्या तुम्हारे पास कुछ काम है करने के लिए? I'm fasting today. मैं उपवास कर रहा हूँ आज। Finish, gone. खत्म। Sister, what are you doing today? बहन आप आज क्या कर रहे हो? I'm fasting today. मैं आज उपवास कर रही हूँ। Gone. खत्म। You will have your rewards on earth. संसार में आपको प्रतिफल मिलेंगे। Wow. वाओ, That's your reward. वही तुम्हारा प्रतिफल है। So God says, no, be fresh. प्रभु कहता है नहीं नहीं, तुम्हें क्या रहना है? Now ताजा look at रहना है। Malachi chapter 3. This is the last verse. मलाकी अध्याय 3 में हम खोलेंगे आखिरी वचन। Why do you fast? क्यों हमें उपवास करने हैं? So basically when you fast, जब तुम उपवास करते हो, you're fasting to draw near to God. आप प्रभु के निकट जाने के लिए उपवास करते हो, You're fasting to be seeking the face of God. ताकि आप प्रभु के चेहरा को ढूंढ सको। You're fasting to bring your flesh under control, under submission. ताकि आप अपने शरीर को अपने अधीन या फिर वश में ला सको। You're fasting to repent of your sin. आप उपवास इसलिए करें ताकि आप अपने पाप का पश्चाताप कर सकें। You're fasting to show God, Lord, this is very, very, very serious matter for me. ताकि आप प्रभु से कहें कि मैं इसीलिए उपवास करता कि ये जो चीज़ विषय है मेरे लिए बहुत बहुत ही जरूरी है। Certain things you can get it only through fasting and prayer. बहुत सारी चीज़ों को आप केवल उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। When you really show God that you are serious about what you are praying जब आप for. दिखाते हैं जो आप चीज़ों को, विषय को लेकर प्रार्थना करें, उसको लेकर आप बहुत सीरियस हो। Look at verse number 6. वचन 6 में देखें, For I am the Lord, I change not. क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं।
Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। Fasting does not change God's plan. उपवास परमेश्वर का योजनाओं को नहीं बदलता। Fasting does not change God. उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता। Fasting changes you and me. उपवास हमें बदलता है। Fasting brings me under the will of God. उपवास मुझे परमेश्वर की इच्छाओं के अधीन ले आता है। Fasting humbles me to accept the plan of God. उपवास जो है परमेश्वर की इच्छाओं को ग्रहण करने के लिए मुझे अधीन में ले आता है। But fasting does not change God. लेकिन उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता। By fasting, I cannot make God do what I want. उपवास के द्वारा ऐसा नहीं कर सकता है कि मैं जो चाहता हूँ परमेश्वर से मैं करवाऊं। But fasting is used by God to make me change my plans to come under the will of God. तो उपवास को इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के द्वारा ताकि मैं जो है अपने इच्छाओं को या फिर अपने शरीर को ताकि मैं जो है बदल सकूं। So fasting will make you humble. तो उपवास आपको नम्र बनाएगा। It will make you powerful. वो तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। Because when you bring yourself under control, you become powerful. क्योंकि जब आप अपने आप को अपने वश में करते हो उस समय आप शक्तिशाली बन सकते हो। It will raise you to your God-given potential. और जो परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि आप वहाँ पे बढ़ सको। Fasting brings you to where God wants you to. जहाँ पर परमेश्वर चाहता है वहाँ पर आप आसानी से आ सकते हैं उपवास के द्वारा। Fasting will make you to discern God's directions. और उपवास के द्वारा आप क्या कर पाएंगे परमेश्वर की रास्ताओं को आप आसानी से पहचान पाएंगे। It will bring God's blessings on you. और परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में ले आएंगे। It will make you focused. और आप ध्यान लगा पाएंगे। Fasting makes you to tell God that He is more precious to you. उपवास के द्वारा यह बता सकते हैं कि ये जो है मेरे लिए बहुत ही कीमती है। Because when you fast, you are showing God, Lord, I'm serious about क्योंकि this. जब उपवास करते हैं आप परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि मैं इस विषय को लेकर बहुत ही सीरियस हूँ। Everyone in the Bible fasted. बाइबल में सारे लोगों ने उपवास किया। The people of Israel fasted. इस्राएल के लोगों ने उपवास किया। All the kings of Israel fasted. इस्राएल के सारे Those राजाओं ने who उपवास obeyed the will of किया। God. जिन लोगों ने परमेश्वर की इच्छाओं का पालन किया। All the prophets fasted. सारे नबियों ने उपवास किया। The apostles fasted. जो प्रेरित ने उपवास किया। Above all, Jesus Himself fasted. और उससे भी अधिक यीशु मसीह ने खुद ही उपवास किया। And if all the prophets fasted, सारे नबी लोग ने उपवास किया। if the kings who did the will of God fasted, अगर राजाओं ने भी प्रभु की इच्छाओं का पालन करते उपवास किया, if all the prophets and apostles fasted, अगर नबियों ने प्रेरितों ने अगर उपवास किया है, and if Jesus fasted, अगर यीशु ने भी उपवास किया है, it means fasting works. इसका मतलब उपवास काम करता है। It means fasting is needed for all of us. इसका मतलब हम सभियों के लिए उपवास बहुत ही ज़रूरत है। Jonah went and preached and the whole city of Nineveh fasted. उन्होंने जाकर के प्रचार किया और निनेवे के सारे लोगों ने उपवास किया। Even the animals fasted. और जो जानवर वगैरह है वो सारे लोग भी क्या किए? उपवास किए। And you know what happened? उसके बाद क्या हुआ? They all trusted in the God of the Bible. सारे लोगों ने बाइबल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। Fasting gave them clearance of their mind and उपवास heart. ने क्या किया? उन लोग के हृदय और मन को स्पष्ट किया। Opened their understanding to behold the beauty of God. उन लोग की सोच, उन लोग की आंखों को खोल दिया ताकि उन लोग परमेश्वर की सुंदरता को देख सके। They saw the gospel. और उन लोगों ने सुसमाचार को देखा They believed in God of the Bible. और बाइबल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। Everybody fasted. सभी लोगों ने उपवास किया। Fasting is important. उपवास हमारे लिए ज़रूरी है। Fasting is powerful. उपवास शक्तिशाली है। Fasting will make you to be under control. उपवास आपको क्या करेंगे? अपने वश में रखेंगे। And God says it is good to fast. प्रभु कहता है कि ये अच्छी बात है अगर आप उपवास करते हैं। But when you fast, लेकिन जब उपवास करते हैं be fresh आप ताज़ा रहें उस समय and do it secretly. और रहस्य अंदर ही अंदर रह के आप करें। Because the Bible says in Matthew chapter 6, क्योंकि मत्ती की किताब अध्याय 6 में कहता है when you pray in secret, जब सीक्रेट में आप जब प्रार्थना करते हैं the Father in heaven will reward you openly. जो स्वर्गीय पिता है वो तुम्हें खुलेआम क्या करेंगे? उसका आशीष करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Not great message बहुत अच्छा संदेश नहीं, because fasting is not great. क्योंकि उपवास ग्रेट नहीं है। Fasting hurts, जो उपवास से हमें ठेस पहुंचाती है, but fasting helps. लेकिन उपवास हमें मदद कर सकता है।
Fasting does not emotionally melt you and give you false hopes. और उपवास जो है आपको इमोशनली पिघलता नहीं कि आप कुछ आशा रखें। Fasting is a training session to make you a soldier of God. उपवास ऐसा ट्रेनिंग सेशन है जहाँ पर आप परमेश्वर का सिपाही बन सकते हैं। The soldiers in the army, they learn to survive by little water for weeks. जो सिपाही हैं उन लोग को सिखाया जाता है ताकि उन लोग कुछ पानी से ही उन लोग हफ्ते भर गुजारा कर सके, And little food for weeks. और कुछ ही खाने से उन लोग ताकि हफ्ते भर गुजारा कर सके। They are trained to keep their body under control. और उन लोग को सिखाया जाता है ताकि उन लोग अपने शरीर को कंट्रोल में रखें। And so is fasting spiritually. और It's for the soldiers of God. ये आत्मिक का जो उपवास है परमेश्वर के सिपाहियों के लिए है। It is not something for the world to know, it is something for God to know. ये ऐसा नहीं कि संसार के लोग जाने, लेकिन परमेश्वर ताकि जाने। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्ग के पिता, this morning we saw a little bit of fasting, O God. आज के सुबह में पिता हमने कुछ उपवास के बारे में देखे हैं। Help us, O God, to learn to fast, आप हमें मदद कर पिता ताकि हम उपवास करने के लिए सीख सके, to seek your face आपके मुख को ढूंढने के लिए with all our hearts, पूरे मन से, ताकि हम ढूंढे, that we may bring glory and honor to thy name. ताकि हम आपके नाम में महिमा और आदर को ला सके। And so, God, we pray that we may fast biblically, पिता हम प्रार्थना करते ताकि हम बाइबल के अनुसार उपवास कर सके, so that we can grab the heart of God. ताकि हम प्रभु के हृदय को हम ताकि पा सके। Lord, please help us. प्रभु आप हमें मदद कर। And those who have never fasted, जितने लोगों ने अभी तक उपवास नहीं किया है, oh Lord, I pray that they will able to try fasting, ताकि उन लोग कोशिश करें उपवास करने के लिए, because there is great blessing in fasting, क्योंकि उपवास करने से हमें आशीष मिलती है, because it helps us to draw more and more closer to you, क्योंकि यह हमें आपके निकट जाने के लिए मदद करता है, to keep our flesh under control, हमारे शरीर को वश में करने के लिए मदद करता to है, see the clarity of thy will for आपकी our इच्छाओं life, को देखने के लिए स्पष्ट तरीके से मदद करता है, and to fight against every temptations, और सारे परीक्षाओं के खिलाफ लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, and that, oh Lord, that we will able to resist the devil. ताकि हम शैतान का सामना कर सके। So please help each one of us to do so. हम प्रत्येक जन को ये करने के लिए मदद कर पिता। We give you all the glory and हम honor. सारे आदर और महिमा को देते हैं, We give you the हम आपको praise. स्तुति देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। And all God's people said, आमीन, and again, आमीन, and again, आमीन। amen. God bless you.